Hello students, today we are here just to discuss the topic multinational companies. Yesterday we made discussion on globalization. तो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारा है. मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आई थिंक इन आवर क्लास ऑलरेडी वी हैड मेड अ डिस्कशन. Basically that company who is having the branch in more than one country or more than two countries. So for their production, for their selling purpose, and for distributing the goods and services, that concept is known as multinational companies. So basically right here we are here just to discuss about the characteristics of multinational companies. And a characteristic की बात करें कि how we can identify this company is working at the multinational level. तो मल्टीनेशनल लेवल की सबसे पहली पहचान तो यही है कि जो उसकी यूनिट्स होंगी वो एक से ज़्यादा कंट्री में होंगी. साइज़ की बात करें तो दे आर हैविंग द लार्ज साइज. ऑब्वियसली बात है जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो द साइज स्ट्रक्चर विल बी लार्ज. द कंपनीज आर सक्सेसफुली वर्किंग इन द डोमेस्टिक लेवल एंड फाइनली गोइंग बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री. सो दैट इज द साइज लेवल ऑफ दैट कंपनी इज गोइंग टू बी एनलार्ज, राइट. तो मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट इन सेवरल कंट्री. जैसे कि फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज आर लार्ज साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. They have huge resources in terms of capital, technology, people and information. सेकेंड हमारी जो इसकी पहचान है मल्टीनेशनल कंपनी की मल्टी कंट्री ऑपरेशंस. मतलब मल्टी कंट्री एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में इनके क्या रहते हैं, प्रोडक्शंस रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं. They can have production, marketing and service type of different operations. They cover large geographical area. They have assets and activities in two or more than two countries. Various objectives are maybe vary because as per the economical value, country, time value of money and the basic infrastructure facilities are going to be different from country to country. Accordingly the objective of the company in the different countries may be different, है ना. As access to new market opportunity, सबसे पहला तो यही हमारा होता है. Access to cheap raw material to reduce cost and increase competitive capacity. And access to cheap source of labor to reduce cost of labor and energy. Various environment definitely will be different. Still you are working at a domestic level, so you are working under the Indian environment. But when you are crossing the national boundary, so you are working in the international way. Various environments may be affect to the company. Centralized ownership and control ownership. Centralized का मतलब कि जहाँ आपकी जो होम कंट्री है वहाँ जिसमें इसकी कंपनी की शुरुआत की है वही इसको ऑनरशिप को डील करेगा और कंट्रोलिंग भी उन्हीं के हाथ में होगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. इन डिफरेंट कंपनी हैज़ होम कंट्री हैज़ ऑल्सो राइट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज. एंड मल्टीपल करेंसीज हमने क्यों कहा, जैसे इंडिया में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इंडियन रुपये की बात कर रहे हैं. अदर कंट्री में जाएंगे तो जिस कंट्री में जाएंगे उस करेंसी की वैल्यू के बेसिस पे ही प्रोडक्ट की वैल्यूज़ भी क्या होती है, डिसाइड होती है. क्योंकि करेंसीज वैल्यूज आर नॉट एट द पार लेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एज द कंट्री इज गोइंग टू बी चेंज. सो देयर करेंसी वैल्यू एंड करेंसी टोटली उसका फेस वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग टू बी change. So risk and the return is also comes in the same manner as the currency value is going to be different. High efficiency because mass production, use of advanced technology, professional management and marketing skills to use resources effectively. So these we have covered the 7 basic characteristics of multinational corporation because exam में क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा है. साथ में इसमें क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है रोल ऑफ MNC इन इंडियन इकोनॉमी, है ना. यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मल्टीनेशनल के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, लार्ज साइज. सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसका, मल्टी कंट्री ऑपरेशंस. थर्ड वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. फोर्थ पॉइंट वेरियस एनवायरमेंट्स. फिफ्थ पॉइंट सेंट्रलाइज ऑनरशिप एंड कंट्रोल. सिक्स्थ पॉइंट मल्टीपल करेंसीज. और सेवन्थ पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे हाई एफिशिएंसी. तो ये 7 पॉइंट्स को आपको पॉइंट्स के फॉर्म में तो लिखना ही है गाइस. एंड अगेन इफ सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, सो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन विद अ स्मॉल पैराग्राफ अराउंड 3 to 4 लाइन्स. और साथ में यदि इस पे बेनिफिट्स की बात आती है तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ MNCs भी लिख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.